All right, can you hear me now? How about now? Can you hear me? Okay, thank you. Okay, so I was saying that I'm sorry I'm late. I was stuck a little bit. My point is, सबसे पहले before we start, send me a list of topics that you're feeling difficulty in, that you're facing difficulty in, that you're unable to do. Send me those topics. And secondly, if there's any question जो आपको मुश्किल लग रहा है, वो मुझे WhatsApp करते हैं. मैंने WhatsApp नंबर अपना शेयर कर दिया. टेक अ फ्यू मिनट्स, ये नंबर नोट कर लें. एंड इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, कीप ऑन सेंडिंग इट टू मी. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इन एनी वे. ऑलराइट, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. ओके, सो आई एम गोइंग टू नोट योर टॉपिक्स डाउन. आई नो अ फ्यू ऑफ देम ऑलरेडी, बट बाकी चीज़ें जो आप बताते जाओगे, आई विल कीप ऑन एडिंग देम. ठीक है, सो आई हैव अ लिस्ट हियर एंड वी विल रिव्यू ऑल ऑफ दैट. ओके, ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू सेंड इट टू मी. Alright. I will also need a couple of volunteers to manage the chat. अगर कोई disturb करेगा, कोई disruption करेगा, तो I will need them to be kicked out. So yeah, I would love to have some responsible volunteers. Okay. Alright. चलें. Okay, I made a couple of moderators. Please make sure while कोई disturbance होती है, make sure that you manage it. I would really appreciate that. I'm not sure if you have read Dan Brown or not, but उसमें वो कहता है कि who will guard the guards. So I don't want कि moderators के ऊपर मुझे कोई moderator लगाना पड़े. So I would appreciate कि responsibility, with great power comes great responsibility, you know. All right. ठीक है. So I see a lot of topics that are being repeated. There's organic, there is mole calculations, there is bond calculations, bond energy calculations. I know recently added to the syllabus. There's redox and electrolysis. Somebody said environmental chemistry. There is definitely moles again. There are a couple of things that are added in the syllabus this year. वो मैं definitely आपको review करवाऊँगा. And then there is salt prep. That's also something people are having difficulty in. Polymers, okay, definitely. Metals and moles. Metals का I'm not sure. Okay, so let's get started then. So if you have any problem, if there's any question, feel free to send it to me. Second point, there is a video already on everything that you need to memorize. Okay, so I'll post a link in here. I would appreciate अगर आप उस वीडियो को इसके बाद वक्त निकाल के, जब भी वक्त निकले, उसको एक दफ़ा देख लेना, because that has all the important facts that you need to remember, or the basic definitions that you need to remember. I don't want to repeat them. आज के लेसन में मेरी कोशिश जो है ना, वो ये है, my goal is that if there's anybody who still has difficulty in any concept, or if there are questions which might be difficult to handle, या जो confusion होती हैं, जो major problems आती हैं, I want कि वो आपकी आज resolve करें. That is the goal है. बाकी उम्मीद करता हूँ दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें इस मिशन में कामयाब करे. ठीक है, और ये इतने बेचैन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह इनके दिल को करार दे, इनको ये स्टार दे. ओके, या आई पोस्टेड द लिंक. ओके, सो देयर यू गो. एसिड बेसिस सॉल्ट्स, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक. करवा लेते हैं. Alright, let's get started then. First topic. So O-level chemistry या IGCSE chemistry है क्या? अगर आप उसके syllabus को देखो ना, तो you have these 3 categories.
द फर्स्ट कैटेगरी इज द फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में वो स्टार्ट करते हैं मैटर से और मैटर की बड़ी प्रॉपर्टीज से. टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, स्टेट्स क्या होती हैं, वो वहाँ से शुरू करता है. एंड देन ही टॉक्स अबाउट हाउ दो स्टेट्स कन्वर्ट टू ईच अदर. आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर ले लेते हो तो क्या होता है, ठीक है. प्रेशर गैसेस को कैसे इंपैक्ट करता है, वॉल्यूम गैस की क्या होती है. एंड ही रिलेट्स इट टू द वेरी स्मॉल थिंग्स विच आर पार्टिकल्स. ये दो मेन चीज़ें हैं. एक मैटर है, द बिग थिंग्स, द थिंग्स दैट वी कैन डील विद, दैट वी कैन डिस्कस. वो प्लास्टिक है, वो मैक्रोमोलिक्यूल है, वो मेटल है, वो नॉन मेटल है, वो सारा कुछ मैटर में आता है. लेकिन जो एटम है, जो मॉलिक्यूल, आयंस, रेडिकल्स, वो सारे के सारे पार्टिकल में आते हैं. और केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी आती है तो आप मैटर की चीज़ों के आंसर्स पार्टिकल से दे सकते हो, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जामिनर आपसे टेस्ट करता है वो ये होती है कि क्या आप एक बड़े लेवल की बात को पार्टिकल से एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते. सो उसमें पहला कॉन्सेप्ट इज कि जब आप हीट करते हो तो चीज़ों को क्या होता है, एंड दैट इज दे स्टार्ट टू गेन काइनेटिक एनर्जी. अब देखो, द मोमेंट आई से काइनेटिक एनर्जी तो मैं पार्टिकल्स को सोच रहा हूँ. तो आपने इस पूरे लेसन में दो चीज़ें ज़हन में रखनी है. वन, वी आर डीलिंग विद थिंग्स ऑन द बिगर स्केल, ऑन द स्केल दैट वी लिव इन, ठीक है. उसमें मेटल है, नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, उसमें फिल्ट्रेशन है, उसमें डिस्टिलेशन है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है. टेम्परेचर आता है उसके अंदर. और फिर पार्टिकल लेवल पे आपने सोचना है, ठीक है. उसको बोलूँगा मैं माइक्रोस्कोपिक. सो वन इज मैक्रोस्कोपिक, द अदर इज माइक्रोस्कोपिक. पार्टिकल लेवल पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, आपके पास एटम्स हैं, आयंस हैं, और उनके बीच की फोर्सेस हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी है. नोट करें वर्ड्स, मैंने पार्टिकल की वॉल्यूम का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, मैंने कहा पार्टिकल की डिस्टेंस. मैंने सब्सटेंस में कोलिजन्स होती हैं, प्रेशर होता है. सब्सटेंस जो है ना, जो मैटर है, उसका प्रेशर होगा, पार्टिकल की कोलिजन होगी. सब्सटेंस की टेम्परेचर होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी. सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा, पार्टिकल का डिस्टेंस होगा. सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई या लो होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो जाएगी, फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ठीक है. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी, पार्टिकल सिर्फ एक दूसरे से दूर जाएंगे और आपस में एनर्जी लेके आएंगे. सो पहले चैप्टर के लिए दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल्स कैसे मैटर को रिलेट करते हैं. और उसमें मैंने आपको मेन थीम्स बता दी हैं. प्रेशर है तो पार्टिकल की कोलिजन है, ठीक है. प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो कोलिजन ज़्यादा हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है तो कोलिजन कम हो रही है. वॉल्यूम है तो उसकी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स है, वो दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं. टेम्परेचर है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ठीक है. और स्टेट चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि अगेन फोर्सेस ब्रेक डाउन हो रही हैं, ठीक है. अगर स्टेट गैस से लिक्विड में जा रही है तो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, बन रही हैं, बिकॉज पार्टिकल्स आपस में पास पास आ रहे हैं, ठीक है. दीज आर द 4 मेन थीम्स इन द फर्स्ट चैप्टर, सही. और इसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं कि जब भी आप हीट देंगे तो वो हीट पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी, लेकिन सब्सटेंस का उससे टेम्परेचर राइज होगा या स्टेट चेंज होगी. यानी कि द हीट एनर्जी दैट यू गिव और यू टेक, दैट इज ईदर फॉर द टेम्परेचर और द स्टेट चेंज. तो टेम्परेचर अगर फिक्स हो गया तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई. तो अगर हीट सारी इधर फ्लो करी तो स्टेट चेंज होगी, फोर्सेस ब्रेक डाउन होंगी या क्रिएट होंगी. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू होपफुली डू द होल सिलेबस. ओके, हीट if it is being given and the temperature starts to increase, then the kinetic energy is there. अच्छा, अब यहाँ भी कॉन्सेप्ट ये आता है कि कैन वी मेजर ऑल ऑफ दिस. यस, हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन चीज़ों को, मैटर की चीज़ों को मेजर करने के लिए होते हैं, लेकिन ये हमारी थेरीज बताती हैं हमें कि क्या हो रहा है, और आपके आंसर्स भी यहाँ पे जो हो रहा है उससे आते हैं, ठीक है. अच्छा, द सेकेंड थिंग दैट ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट इज ही इज गोइंग टू गो इन टू मोर डिटेल ऑफ मैटर. ही इज गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट प्योर थिंग्स एंड इम्प्योर थिंग्स, और सेपरेट कैसे करते हैं हम उनको, डिस्टिलेशन,
फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। आई विल एक्सप्लेन कि उनके आंसर्स कैसे देने हैं। जब हम सॉल्ट प्रेप करेंगे ना तो तब मैं आपको बताऊंगा कि उसके आंसर्स में कीवर्ड्स कौन कौन से लिखने हैं, ठीक है। वो सारे का सारा इधर है। तो दैट इज प्योरिफिकेशन टेक्निक्स, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, दैट इज डिस्टिलेशन, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो आ जाता है कि वो कहते हैं कि अच्छा वो प्योर चीज़ों के अंदर भी एलिमेंट्स हैं और कॉम्पाउंड्स हैं, और उनको वो कैटेगराइज करता है पार्टिकल्स की बेस पे, ठीक है। तो प्योरिटी के ऊपर बात करता है कि प्योरिटी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया, ठीक है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि अच्छा अब हम वी आर गोइंग टू डाइव डीपर, वी आर गोइंग टू लीव द मैटर आउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में फिर हमारे पास वो पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। 3 तरह के मेजर रिएक्शन हैं, रीडॉक्स है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन और बाकी सारे रिएक्शन हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं मेन हमारे पास रिएक्शंस की, ठीक है। वो बॉन्डिंग में आ जाता है। फिर वो वापस मैटर की कैटेगराइजेशन की बात अगर करता है तो वो कहता है जी पीरियोडिक टेबल है। वो कहता है जी मेटल्स हैं, मेटल्स इन्वायरमेंट को कैसे इंपैक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स इन्वायरमेंट को कैसे इंपैक्ट करते हैं, उनमें एसिड्स हैं, उनमें बेसिस हैं, उनमें सॉल्ट्स हैं, उनमें हमारे पास फिर कैटलिस्ट आ जाते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट अगेन कि पार्टिकल को एनर्जी कैसे देते हैं और उसकी एनर्जी गेन या लूज होती है, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। वो गेन या लूज होने से पार्टिकल आपस में कोलाइड ज़्यादा करता है, वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और कभी कभी कोलाइड करके वो एक पार्टिकल से एक चीज़ बनती है और फिर वापस वो रिवर्स हो जाता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है। एंड एट द एंड वो बात करता है कार्बन की, विच इज़ लाइक द किंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स फॉर आवर लाइफ फॉर्म। और फिर वो बात करता है कि वो क्या करता है और उसके कैसे रिएक्शन होता है, वो ऑर्गेनिक है। ये जो मैंने 5 मिनट की रैम्बलिंग की है ना, दिस इज योर ओ लेवल्स केमिस्ट्री, IGCSE केमिस्ट्री, ठीक है। और अब हम 1 by 1 इन टॉपिक्स को देखेंगे एंड विल सी कि अच्छा इन टॉपिक्स में एग्जामिनर हमें कैसे टेस्ट करता है। रिमेंबर, मैं आज आपको सिलेबस नहीं करा रहा हूँ सिर्फ। टुडे माय गोल इज टू टीच यू पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स एज वेल। हमने पेपर को कैसे करना है, हमने क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, ये हमारा आज का गोल है। A* उससे आता है, सिर्फ सिलेबस से, सिर्फ केमिस्ट्री आने से नहीं आता। ओके, ऑफ कोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ टाइम फॉर दैट, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। ओके, स्टेप 1, ऑर्गेनिक में आपने काउंटिंग आनी चाहिए। आपको काउंटिंग बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक के लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कार्बन 4 1 2 3 ये, ठीक है। इसको एक स्टूडेंट ने मेरे इसको बोला था खान, बट आई एम नॉट सेइंग, आपकी मर्जी है। अच्छा, देन इसी तरह जब हम कार्बन को फोकस करते हैं कि कार्बन कितना है, तो हमारे पास उसकी काउंटिंग है 1 2 3 4 5, बस काफ़ी है। ज़्यादा करना है 6 तक चले जाओ। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है। यस, इट विल बी सेव्ड। नेक्स्ट स्टेप, the organic compounds, they will always be divided into families. उनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। वो होमोलोगस सीरीज क्या है, दोज आर, उनके नाम से आपको बताना चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन है। अब आपके जहन में यहाँ से क्या आना चाहिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप उसको, बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड है, उसको ब्रेक करके फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या उससे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना सकते हैं, बस खत्म। 2 रिएक्शन है उसके, और कुछ रिएक्शन नहीं है। डबल बॉन्ड है, वेरी रिएक्टिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन से हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। हर फैमिली का एक रिएक्शन आपके सिलेबस में, ठीक है। अगला, हमारे पास इसके साथ OH लग जाए तो अल्कोहल है, ओल। This again burns and it can be made from this and it can be reversed to this. Organic के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके एंड पे OIC आता है। क्यों? एसिड के एंड पे IC आता है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक, इसमें OIC आता है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, तो ये जब भी आ गया आपने इसको ये लेना। अच्छा, दिस काउंटिंग इज फॉर कार्बन्स,
इनको जब हम काउंट करते हैं, दीज, इनको जब हम काउंट करते हैं तो हमारे पास तब 1 2 3 क्या है, वी हैव मोनो, ऑल्दो वी मोनो वी नेवर यूज इट, ठीक है, वी हैव डाई, ट्राई, टेट्रा। सो 2 कार्बोक्सिलिक के ग्रुप्स आ गए तो डाईओइक, ये एक आ गए, 2 आ गए तो डाईओल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव दिस एस्टर, ठीक है, इसके नाम के एंड पे O8 आ जाएगा। इसके इधर भी कोई कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है, R मीन्स कार्बन की कोई भी चीज़, इनके एक साइड पे R है, ठीक है, और अगर उसके दूसरी साइड पे हो जाएगा तो डाईओल हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, आइसोमर। आइसोमर का पता होना चाहिए वो क्या होता है और उसको बनाना आना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एवरीबडी शुड हैव पेपर पेन, वी आर गोइंग टू मेक आइसोमर्स नाउ। सबसे पहले आप ये करो, pick one of these numbers, 3 4 और 5, ठीक है, pick one number, that many carbons, उनको अरेंज कर दो एक रो में। चल गिव एन एग्जांपल, मैं कहता हूँ प्रॉप, तो मैं 3 कार्बन्स को अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक प्रॉप विद एल्कोहल ग्रुप, प्रोपानोल बनाना है मैंने, तो मेरे पास OH होगा। मैंने आपको ये जो काउंटिंग बताई है, इस काउंटिंग का क्या मकसद है, कार्बन विल हैव ऑलवेज 4 बॉन्ड्स, नो लेस नो मोर, हाइड्रोजन विल हैव 1, ऑक्सीजन विल हैव 2, नाइट्रोजन विल हैव 3, ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, एग्जैक्टली रहनी है, ठीक है। सो आइसोमर्स, ये आपके सिलेबस में, ओ लेवल्स के सिलेबस में इस साल ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये देख लो। ओके, सो वी हैव OH, कार्बन्स को हम नंबर देंगे, मैं OH पहले कार्बन पे लगा रहा हूँ। नोटिस मैं पहला इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट डजेंट मैटर विच साइड यू स्टार्ट विद, मैं इस साइड से आऊँगा तो ये पहला है, इस साइड से आऊँगा तो ये पहला है। मैं किस साइड को देखूंगा, जिस साइड पे मेरा फंक्शनल ग्रुप करीब है। सॉरी गाइस, बिजली चली गई थी। ऑलराइट, ओके, कैन यू हियर मी नाउ? या, ओके, सो वी हैव OH, सो फर्स्ट कार्बन पे OH आने का मतलब ये कि दिस इज माई फर्स्ट कार्बन एंड आई एम गोइंग टू गेट prop because of 3 carbons, and ol कहां पे होगा, 1 ol, that's what I have here, okay, so prop 1 ol, that's what I have. Is it stuck again? Okay, now I have prop 1 ol, all right, and this one can also be called 1 propanol, so it's my choice what I do. And then with the other carbons you need to make sure कि ये 4 carbons की bond होनी चाहिए। इसकी एक की अगर सिंगल कार्बन बॉन्ड है तो हम सिंगल लिख देंगे और बाकी 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अगर उसके साथ 2 बॉन्ड्स बनी हुई हैं तो विल पुट 2 मोर, अगर उसकी 3 बॉन्ड्स बनी हुई हैं तो विल पुट 1 मोर, और दैट मेनी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फिलर है, जहां भी आपको टोटल बॉन्ड्स बनानी है वहां पे आपने हाइड्रोजन बना देना है। अच्छा, जस्ट मेक श्योर कि ये अगर कार्बन है तो इट शुड बी H H H हर जगह पे। एग्जाम में आपने खाली नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है, एग्जाम में यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स ऑल देयर। Are you not able to see what I'm writing? Yeah, it's stuck. Hold on. Yeah, can you guys hear me now? All good? Can you see the bonds that I made with carbon? Okay, great. So I was saying कि this will be 1 propanol. Now if you want to make an isomer, आपने सिर्फ ये करना है, इस OH को पकड़ें
इसकी पोजीशन चेंज करें. नाउ लुक एट इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ. मेरे पास कार्बन 1 2 3 3 चॉइसेस हैं. मैं अगर इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है 1 2 3 कार्बन अगैन. पहले पे OH लगाता हूँ, ठीक है. डू यू सी कि दिस इज अगैन 1 प्रोपेनॉल, बिकॉज अब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगा. सो यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करें. देन वी हैव अ चॉइस, हम इसको सेकेंड कार्बन पे लगाएंगे एंड दिस विल बी 2 प्रोपेनॉल. सो टेक अ मिनट, मेक एन एल्कोहल जिसके 2 आइसोमर आपने बनाने हैं और उसमें 4 कार्बन होने चाहिए. गो ऑन, डू इट. उनके नाम भी आप दो, ठीक है. रिसेंटली एडेड टू द सिलेबस, इस साल पहली दफ़ा ओ लेवल्स में आएगा ये, ठीक है, दिस नेमिंग स्कीम. सो गो ऑन, डू इट. 4 कार्बन वाले एल्कोहल बनाएं. Okay, done. So again, how do you do it? सबसे पहले देखें how many carbons you have. You have 4 carbons, so 4 की chain बना दें. Done. Okay, I'm going to make 2 isomers, तो मैं 4 की chain 2 बना दी. Now I'm going to put OH either on the first carbon or on the middle carbon. So मैं first carbon पे अगर लगाता हूँ तो ये है, और second carbon पे लगाता हूँ तो ये है. And then I'm going to fill the rest of them. 4 bonds for each carbon. इसकी 2 हैं तो 2 और, इसकी 2 हैं 2 और, इसकी 2 हैं 2 और. And that's how I fill them all up. Alright? And then we name them. This one, but 1 ol. This one, but 2 ol. क्यों? but क्यों है? क्योंकि ये 4 एक रो में. ठीक है? अच्छा, इससे मैटर नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये ऊपर है या नीचे है, ये साइड पे है, डजंट मैटर. इन ओ लेवल्स IGCSE एंगल डजंट मैटर. ठीक है, तो आप यहां पे भी अगर इसको लगाओगे तब भी ये 2 ब्यूटेनॉल ही है, और यहां पे भी लगाओगे तब भी ये, यहां पे भी लगाओगे तब भी ये. अच्छा, सो दिस इज वन काइंड ऑफ आइसोमर वेयर यू आर चेंजिंग द पोजिशन. अच्छा, अब दूसरा आइसोमर देखते हैं. दूसरा किस कैटेगरी का आता है? दैट इज व्हेन यू हैव अ ब्रांच. ब्रांच का नाम आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू नीड टू बी एबल टू ड्रॉ इट. ठीक है, ब्रांच कैसे बनाते हैं? सो हियर्स अ क्वेश्चन. आपने 4 कार्बन्स वाला एल्केन बनाना है एंड यू नीड 2 आइसोमर्स ऑफ दैट. 4 कार्बन्स वाला एल्केन. अब मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि 4 कार्बन्स को कैसे एडजस्ट करते हैं? सो आप चेन में 4 कार्बन्स बनाओ, 1 2 3 4. अब नेक्स्ट आपने चेन में 3 बनाने, 4 नहीं बनाने. सो 1 2 3. नाउ वेयर शुड वी पुट द 4th कार्बन? समवेयर इन द मिडल. क्यों? अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो वापस वो 4 बन जाएगा, अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो वापस वो 4 बन जाएगा. वाई? हाउ डू आई नो कि मेन चेन में कितने कार्बन है? टेक अ पेंसिल और आपने सिंपली उसको एक साइड से स्टार्ट करना है. जितना बेंड होता है कोई मसला नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू कनेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दैट यू कैन. आई कैन कनेक्ट 4, आई कैन कनेक्ट 4. ये 2 आइसोमर्स नहीं है, दे आर द सेम थिंग. ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 थिंग्स फॉर यू. टेल मी, इनमें से आइसोमर कौन है? ओके, लेट्स सी. इसको भी फिल कर लेता हूँ. ओके, सो विच वंस आर आइसोमर्स एंड विच वंस आर नॉट? लेट्स सी. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. ठीक है, वी हैव अ चॉइस है. आपने बताना है
कौन से आइसोमर्स हैं और कौन से आइसोमर्स नहीं हैं. ओके, सो गो ऑन, बताएं कैसे होगा. Go on. Remember the definition of isomer: compounds with the same molecular formula, different structure. Which means कि if I start tracing it on one side, तो I should be able to join different number of carbons. यहाँ पे अगर मैं इसको join करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम नंबर है. ठीक है, टोटल 7 है बट 6 मैक्सिमम नंबर है जिनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ. अच्छा, टोटल 7 है. 1, इसको स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम नंबर है और एक उसका ब्रांच में है. ठीक है, I'm going to end the poll now. Alright, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so 30% of the people think that 1 and 3 are isomers. And 69% of the people think कि ये दोनों आइसोमर्स हैं. And 1% ने अभी शायद वोट ही नहीं किया है. Then you have to understand different number of carbons को अगर मैं join कर सकता हूँ then it's an isomer. If it's the same number it's not an isomer, it's the same thing. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और सेकेंड वाले पे एक ब्रांच है. अब यहाँ पे देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 और सेकेंड वाले पे ब्रांच है. 1 and 2 are exactly the same thing, but यहाँ पे I can join 7 and here I have 7 different number of carbons I can join. 1 and 3 are isomers, 1 and 2 are the same thing. ठीक है, so if you can trace the maximum number of carbons with a pencil without picking the pencil up, bend करना है कोई इशू नहीं है, then that thing is going to be a different compound. दूसरे वाले में different होंगे तो वो different compound होगा. Alright, so that is how this comes out to be. Alright, moving on. So isomer समझ आ गया. अच्छा, so now go on. 5 carbons वाले alkane के 2 isomers बनाओ. It's stuck again. ओह, गो ऑन. इनके नेमिंग नहीं है आपके सिलेबस में, इनकी नेमिंग नहीं है. गो ऑन. 5 कार्बन्स वाले एल्केन की स्क्रीनिंग करें. हाँ, स्क्रीन इज ब्लैंक, मैंने उसको बनाया नहीं है. गो ऑन, मेक इट. 5 कार्बन एल्केन. ओके, लेट्स सी. 5 कार्बन एल्केन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बना दें. ओके, डन. अब 4 कार्बन की चेन बना लें. तो अब 5th कार्बन मिडिल में कहीं पे लगाते हैं, यहां पे आ दें. अच्छा, इफ यू वांट टू गो वन स्टेप फर्दर, 3 कार्बन की चेन बना लो.
और बाकी 2 मिडल में लगा दो, ठीक है। अच्छा, ये तीनों आइसोमर्स हैं, बाकी ऑब्वियसली इनके हाइड्रोजन होंगे। हियर्स अ क्वेश्चन, मैं 3 कार्बन की चेन बनाता हूं और ये दोनों मिडल में लगा देता हूं। टेल मी, इज दिस अ डिफरेंट आइसोमर और नॉट? इज दिस अ डिफरेंट आइसोमर? बताएं। No, 2-methyl 2-butane not in our syllabus. No. So tell me कि ये तीनों तो मुझे पता है ये आइसोमर्स हैं, ये 4th वाला is it a different isomer or is it not? Yes, Kamran, it will be. किसी भी से देख लें, मतलब I have 3 कार्ब, ये 1 2 3 these are my isomers. Is this another isomer or is it not? Okay, I'm going to end the poll now. Alright, so here we have the results. 31% say this is not an isomer. क्या कर रहे हो? 68% say this is an isomer. भाई ये आइसोमर्स हैं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप देखो देन दिस हैज 1 2 3 4 इन द मैक्सिमम चेन और सेकंड पे 1 कार्बन है, और इसमें भी 1 2 3 4 इन द मैक्सिमम चेन और सेकंड पे 1 कार्बन है। सो दीज टू आर लिटरली द सेम थिंग। Okay, so these two are same isomers, these are not. भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, परेशान कर रहे हो। खैर कोई नहीं, कर लेंगे, हम कर लेंगे। Let's try one more time. This time I'm going to make a positional isomer, branch नहीं, positional isomer, यानी कि उसमें हम position बदलेंगे 2 3 1 इस तरह के नेमिंग वाला नाम। So I'm going to make 4 carbon alkene, ठीक है, 4 कार्बन वाला एल्कीन, इसकी करते हैं हम आइसोमर्स बनाते हैं 1 2 3 4। ओके, स्टेप 1, मैंने पोजिशनल आइसोमर बनाना है ना। आई एम गोइंग टू पुट द डबल बॉन्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन। सो दिस वन इज ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन। नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस अगेन एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू पुट द डबल बॉन्ड हेयर। सो दिस वन इज ब्यूट 2 in. Notice these are positional isomers, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। These are branch isomers, इसमें ब्रांच के नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ब्रांच आइसोमर कैसे बनाते हो? You pick a number, you reduce it, then you reduce it again, आइसोमर बनते जाएंगे। 5 है, 5 की चेन बनाओ, फिर 4 की बनाओ, फिर 3 की बनाओ। ये सिर्फ पोजीशन बदलते जाओ। अगर 4 है तो 1, फिर 2, बस वापस 3 पे आ गया तो वापस 2 बन जाएगा ना। मतलब इधर से काउंटिंग करो या इधर से काउंटिंग करो, इट्स द सेम थिंग। ऑलराइट, समझ आया पोजीशन आइसोमर्स कैसे बनाते हैं? नाउ मेक पोजीशन आइसोमर ऑफ 5 कार्बन एल्कीन। गो ऑन, 5 कार्बन एल्कीन। पेपर पकड़ो, ड्रॉ करो। यस, यू आर राइट, 2-methyl प्रोपेन था, लेकिन उसका एक बेहतर नाम भी है, 2-methyl ब्यूटेन। Shaban, your definition is absolutely right. Same molecular formula, different structure formula, yet different structure, that is what an isomer is. Okay, so I hope you have spent your time on this. So 5 carbon, as I said, positional isomer था तो chain उतनी रहेगी, 1 2 3 4 5, 2 chains बना लेते हैं। एक में फर्स्ट पे कर देते हैं, एक में सेकंड पे कर देते हैं। Done. Okay, here's a question.
Now I'm going to make the 5 carbon chain again, and this time I'm going to put it on the 3rd carbon. I know that the first and second are isomers. Is number 3 are different isomer? बताएं जी, go on, tell me. Is number 3 a different isomer? Yes, Naima, very good. Pent1ene and pent2ene, इन दोनों के नाम यही हैं. Yes. Good going, Mahek. So is 3 a different isomer? Okay, take 5 more seconds. Vote, go on. भाई डेमोक्रेसी है, अभी से वोट देना शुरू करेंगे तो बाद में अच्छा वोट देंगे अगर इलेक्शन हुआ. Alright, let's end it. Very good. 84% of the people think that the third one is not an isomer. And absolutely, दिल खुश किया है भाई. This is not an isomer. You're absolutely right. Second and third, they are the same thing. क्यों? अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट करूँगा, इसको काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 करूँगा. This one is pent2ene. This one is pent1ene. Okay? All right, go on. Very good. ये होती है progress. Yes, very good. Okay. Now that we know this, वापस last question, positional branch isomers. Last question. You have to make a 5 carbon alkene branched isomer. There's a lot of variation there. Go on, do it. अस्सलाम वालेकुम. I love your comments. ये जो आप मेरी वीडियोस पे वो टाइम स्टैम्प्स देते हो ना, थैंक यू सो मच. बहुत वक्त बचाते हो आप. थैंक यू सो मच. कंफर्म जन्नती. Question is, make a 5 carbon alkene but make branched isomers of that. Cypher, I'll get to crystallization. बिल्कुल हम करेंगे. मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ है, सॉल्ट प्रेप में हम crystallization करवाऊंगा आपको. We are doing isomers right now. Go on guys. 5 carbon alkene branched isomer. Last 20 seconds. Yes, ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम लोग. ऑलराइट, लेट्स डू इट. 5 कार्बन एल्कीन कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और फिर 5th वाला इन अ ब्रांच. ठीक है, अब मुझे डबल बॉन्ड बनानी है तो मैं दोनों पे यहाँ पे बना देता हूँ. दैट्स माय चॉइस. अच्छा, ब्रांच आइसोमर बनाना था ना. अब मैं पोजिशनल आइसोमर भी इसी के अंदर कैसे बना सकता हूँ? इसका पोजिशनल आइसोमर होगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ब्रांच, और इसका पोजिशनल आइसोमर होगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं. जस्ट मेक श्योर कि आप हाइड्रोजन उसके लिहाज से फिल करो. मतलब दिस वन विल हैव 1 2 हाइड्रोजन्स, क्योंकि इसकी ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स हैं और इसकी 3 बॉन्ड्स हैं तो इसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा. ओके, ओके. मैंने अभी जो बॉन्ड्स बनाई हैं उसमें एक गलती है. गो ऑन, स्पॉट दैट मिस्टेक. टेल मी 1 2 3 4 किस मॉलिक्यूल में गलती है? गो ऑन, पिक इट अप. इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक. गो ऑन.
Which of these has a mistake? Good, good, good. Okay, I'll end this poll इससे पहले कि ये बहुत नीचे चला जाए नंबर. So far 86% think कि फोर्थ कार्बन में, फोर्थ मॉलिक्यूल में गलती है. भाई आपको इसमें गलती नजर आ रही है? सही नजर आ रही है. बिकॉज इफ यू लुक एट दिस कार्बन, उसकी 5 बॉन्ड हैं. 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकती. ऑलराइट, you can only have 4 bonds, which means that I have to let this hydrogen go. Okay, so this is now correct. 5 bonds for carbon are not possible. Remember this. ये जो मेरे एक स्टूडेंट ने इसको मिस्टर खान बोला था. So remember this. 4 for carbon, 1, 2, 3. That is the number of bonds they can make, not more. Okay. ओके, हो गया. सो आई होप आइसोमर्स ये बनाने सबको आ गए, नाम भी सबको आ गया. ठीक है, ऑलराइट. थैंक यू वर्षा, थैंक यू. ओके, यस आई विल डू सम ईयरली पास पेपर्स, हम करेंगे, डोंट वरी. अच्छा जी, अब आइसोमर्स हो गए. अगला जो मेन प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को वो है पॉलीमर्स. ठीक है, पॉलीमर्स में ऑर्गेनिक में बहुत स्टूडेंट्स अपने मार्क्स खराब करते हैं. लेट्स फिक्स दैट टुडे. ओके, लेट्स स्टार्ट. 2 तरह के पॉलीमर्स हैं, एडिशन, कंडेंसेशन. पहले एडिशन को देखते हैं. एडिशन पॉलीमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा. अगर कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है. दैट्स इट. तो यू आर गोइंग टू हंट फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अगर बन सकती है, अगर है तो उसके एडिशन पॉलीमर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. सेकेंड वन इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज वेयर यू नीड H and OH. आपको नजर आ रहा है कि कहीं पे 2 साइड्स पे OH लगा हुआ है, तो आपने H और OH का शिकार करना है. दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू लुक फॉर. ओके, H and OH. अच्छा, लेकिन होता दोनों साइड्स पे OH है या NH है. दैट्स इट. थर्ड कैटेगरी कोई नहीं होती. इन 3 चीजों के अलावा आपको कोई सिलेबस में नहीं आएगा. या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है तो आप उठा सकते हो, या O के साथ लगा हुआ है तो आप उठा सकते हो, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती. कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं होने लगी. ठीक है, फ्लोरीन के साथ लगा हुआ है, नहीं हो सकती. ओनली 2, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ओके, सो रिमेंबर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके साथ कंडेंसेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू इट. एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं जरा. Step 1, you're going to put it in the standard form. Standard form examiner नहीं कहता कि मुझे चाहिए, लेकिन in my experience, if you put it in all in standard form, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने लगा, especially when they ask you to draw it. Okay, so that's what we do. Standard form क्या है? 2 standard forms है हमारे पास. एक standard form ये है कि आपने डबल बॉन्ड सेंटर में करनी है और ये ऊपर नीचे जो कुछ भी लगा हुआ है वो इधर लगेगा. नो मैटर व्हाट मॉलिक्यूल यू हैव, अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन करनी है ये उसकी फॉर्म होगी. अच्छा, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए नो मैटर व्हाट मॉलिक्यूल यू हैव, उसके ये फॉर्म होगी. अगर OH है तो इस तरह होगी, COOH है इस तरह होगी, वो NH2 है इस तरह होगी. 3 केसेस आते हैं आपके पास, लेकिन फर्क ये है दैट फॉर डबल बॉन्ड, फॉर एडिशन पॉलीमर, देयर विल नॉट बी एनीथिंग हियर, एम्प्टी. ठीक है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ देम ये. ओके, सो एडिशन पॉलीमर तब बनेगा जब यहां पर ये खाली रहेगा. वो जिन्होंने पहला सवाल किया था ना 69%, उन लोगों के दिमाग की तरह, यहां पर कुछ भी नहीं होगा. और यहां पर कंडेंसेशन पॉलीमर्स में यू विल हैव थिंग्स दैट यू कैन टेक अवे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको एक मॉलिक्यूल दूंगा,
आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ड्रॉ करना है। Okay, I want to do addition polymerization of this. Go on, put it in the standard form. ओके, सो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। यू विल सिंपली ड्रॉ द स्टैंडर्ड फॉर्म। बना लिया? अब जरा देखो, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? 1 हाइड्रोजन और 1 OH। देयर यू गो, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, अब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे। ठीक है, सो आई एम गोना डू इट वन मोर टाइम। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है आपने। Okay, go on, make standard form of this one. We are going to make addition polymer of this, standard form में बना के लाएं। Take a minute, go on. All right, here we go. Standard form is this. Okay, अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? 1 हाइड्रोजन और 1 ये पूरी चीज है, हाइड्रोजन CH3। ओके, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है क्लोरीन है, बन गया। वन लास्ट स्टेप, वी हैव दिस वन। Put it in the standard form for addition polymerization. Go on, do it. Thank you, thank you. देखो, पुट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इट्स ऑलवेज दिस थिंग। जब बना लिया, देखो इस कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है वो ऊपर नीचे बना दो, जो इस कार्बन के साथ अटैच है वो ऊपर नीचे बना दो। देयर यू गो, सिंपल, वेरी गुड, वेरी गुड। COOH नीचे आएगा, एक्सेलेंट। CO2H भी लिख सकते हो आप उसे, वेरी गुड। लेट्स डू इट। अब देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, ये पूरी चीज यहां पे लगा दो, COOH। ठीक है, ओके, लेट्स डू द अदर वन। यहां पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये पूरी चीज यहां पे लगा दोगे, COOH। अच्छा, समटाइम्स एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर इसको उल्टा करके बना देगा, वो आपको HOOC बना देगा। तो क्या फर्क पड़ता है? एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एडिशन पॉलीमर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं? ऑलराइट, वन लास्ट एग्जांपल, जस्ट वन लास्ट एग्जांपल। एडिशन पॉलीमराइजेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ इसको। आई विल नॉट सजेस्ट कि यू पुट बॉक्सेस। एग्जामिनर बॉक्सेस दे दे, कोई मसला नहीं है, हमने नहीं अपनी तरफ से ऐड करना।
थैंक यू नाइम. Done? Okay, let's see. Standard form. What do I have on this carbon? OH, Cl. What do I have on this carbon? Hydrogen, CO2, CH3. इसको मैं COOCH3 भी लिख सकता हूँ. ठीक है? And there you go. अच्छा, एक और काम कर सकते हो. Again, just for O levels और IGCSE. A levels में ये गलती नहीं करनी है. इसको उठा के यहाँ लिख दो, इसको हाइड्रोजन को उठा के यहाँ लिख दो. O levels IGCSE में ये चलेगा, A levels में नहीं. ओके, सो देयर यू गो. अब हाथ ही छोड़ो उस बात को. ऑलराइट, सो हियर यू गो. बन गया. अब हम देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म कंडेंसेशन पॉलीमर की कैसे बनाएंगे. ओके, लेट्स सी. कंडेंसेशन पॉलीमर में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? जिस कार्बन के साथ आपको OH मिल रहा है, वो COOH हो, वो खाली OH हो या NH हो, ठीक है, उन कार्बन्स को हमने लिखना है. एग्जामिनर विल नेवर आस्क यू टू मेक स्टैंडर्ड फॉर्म्स, कभी भी नहीं बोलेगा वो. तो यहां पर या OH या NH या फिर COOH ये आएगा. तो ये आपने बनाना है, क्योंकि दिस इज व्हाट मेक्स आइसोमर्स. ठीक है, तो आपको बेसिकली या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए. दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? यहां पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इधर और इधर. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी. एक ऑप्शन करते हैं. हमने ये एक मॉलिक्यूल पकड़ा था. डू यू सी कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? कैसे? दिस वन हैज OH ऑन द अदर साइड, दिस वन हैज OH ऑन द अदर साइड. डन. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ओके, अच्छा, ये हो नहीं सकता, इसको छोड़ देते हैं. अच्छा, आई एम गोना गिव यू अनदर वन. Go on, make a standard form out of this. Yes, Subhan, carbohydrates are not in our syllabus anymore. Noor, I don't understand your question. Yes, Abdullah, standard form means OH on both sides. If you don't have OH on both sides, then NH on one side. जिस साइड पे OH नहीं है वहां पे NH. Yes, Hadi, I will do that. Don't worry, don't worry. आप खुद कर लेंगे ये. ओके, सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? बहुत सिंपल है. आपने देखना है कि अच्छा मेरे पास इस साइड पे तो कार्बॉक्स, सॉरी, आपने देखा कि वन साइड हैज COOH बट द अदर साइड डजंट. तो अदर साइड पे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेके आओगे. दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाई? यू नीड NH और OH ऑन ईच साइड. दोनों में से एक होना चाहिए हर साइड पे. दैट्स व्हेन यू डू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ओके, ऑलराइट, लेट्स डू इट अगेन. एक एग्जांपल दे रहा हूं. गो ऑन, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ इसको. यस सुभान, एब्सोल्युटली. अस्सलाम वालेकुम रातीब. Yes, Cypher, exactly. Functional groups on each side. Yes.
So I hope you've done it. So here's what we do. I don't care about these carbons, वो center में हैं तो रहें. I just need carboxylic acid on each side. Done. That is how you get standard form. So standard form क्या है? Standard form is simply if you have addition polymers, sides will be empty. If you have condensation polymers, sides will have NH or OH. That's it. Okay. Now let's get to how do you make polymer. ठीक है? फिर से समझा दूँ? Sure. Basically, what you need is that you don't look at any carbon, but you look for the things that have OH or NH. That's what you're going to look for. You should have that on either side. जैसे यहाँ पे देखो, इस कार्बन के इस साइड पे हाइड्रोजन था. That's not what I need. I need NH और OH. तो मैंने इस पूरे को यहाँ पे लिखा और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखा. ठीक है? तो that's what I did. मैं इस पूरे को मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला राइट साइड पे लिखा. क्यों? क्योंकि मुझे NH और OH चाहिए. दोनों साइड्स पे OH हो सकता है, दोनों साइड्स पे NH हो सकता है, दोनों साइड्स पे OH या NH हो सकता है, बट चौथी कोई चीज़ नहीं हो सकती. ओके. द पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्डेड O डजंट मैटर. ये ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके. ऑलराइट. वन मोर क्वेश्चन. एक सेकेंड मुझे देना. एग्जाम में एक बड़ा वियर्ड सा एक क्वेश्चन आया था एक दफ़ा. लेट मी सी. Okay, here you go. This thing is lactic acid. Okay guys, who's up for a challenge? We are going to make standard form from this for condensation polymers. Go on, do it. खदीजा, वी नीड 1H. अगर दूसरा हाइड्रोजन है तो पढ़ा रहे, वी डोंट केयर. अब्दुल्ला सबर, बताता हूँ. नाउ फॉर कंडेंसेशन पॉलीमर्स एग्जामिनर अक्सर स्टैंडर्ड फॉर्म बना के देता है. फॉर एडिशन पॉलीमर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे. अच्छा, सो लेट्स डू इट. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बड़ी आसान है. मुझे पता है कि मुझे इस साइड पे ये OH चाहिए. ठीक है, तो मैं स्विच कर दूंगा. मैं इसको तो ऐसे ही रखूँगा, बट इस साइड पे OH ले आऊँगा. बना लिया. ठीक है, इधर मैंने CH3 लगा दिया. दिस इज टफ. अगर नहीं हो रहा छोड़ दें इसको, कोई मसला नहीं. कंडेंसेशन पॉलीमर में एग्जामिनर आपको खुद से बना के देता है स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. एडिशन पॉलीमर में वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको आनी चाहिए. अब अगला स्टेप ये है कि हम कहाँ पे बनाएंगे. हमें तो कभी आज तक सवाल ही नहीं आया जिसमें उसने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दो. ठीक है, हमें तो पता ही नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, कभी देखी नहीं. सो अब क्यों ज़रूरत है उसकी? बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू RCJ. RCJ क्या है? रिमूव, कॉपी, जॉइन. एडिशन पॉलीमर बनाना है, रिमूव द डबल बॉन्ड. कंडेंसेशन पॉलीमर बनाना है, रिमूव H एंड OH फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, एक दफ़ा रिमूव होते हैं, एक दफ़ा करें, दो दफ़ा रिमूव होते हैं, दो दफ़ा करें. Alright, so condensation polymers, H and OH from both sides. Addition polymers, carbon carbon double bond remove करना है आपने. कर लिया remove. Whatever is left, copy that, and then join it. Okay, that's what we are going to do. So ये सारे जो हमने standard form में बनाए ना, हम इन सब के अब polymers बनाने लगे. Let's start with the कहाँ पे हमने ये बनाया था. Okay. So this was our first standard form. Let's see. इससे मैं polymer बनाने लगा हूँ. So here's what we are going to do. RCJ. Remove the double bond. Done. Copy it. Done. Join. And this is what you have. Partial structure.
अगर वो आपसे कहे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, वो आपसे कहे ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, दोनों सूरतों में ये बनाना है। अगर आप ये वाली कंटिन्यूएशन बॉन्ड्स बनाते हो गुड, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाते कोई मसला नहीं। ओके, सो फॉर कंडेंसेशन पॉलीमर H and OH, for addition polymer carbon carbon double bond, that's it, those are the ones that we need to remove. Sometimes examiner says draw 1 unit, sometimes examiner says draw 2 units. अगर उसने 2 बोले तो 2 कॉपी कर लें, अगर 1 बोला तो एक ही दफ़ा कॉपी कर लें। Always make these continuation bonds, ज़रूर बनानी। Alright? Okay. अब अगर वो आपसे कहे इससे मोनोमर बनाना है तो मैं उस पर अभी आता हूँ, बट पहले हम RCJ करते हैं। ओके, अच्छा ये हमने बना लिया था, इसको ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। I have this RCJ. Remove the double bond, copy the remaining part and join it. बन गया पॉलीमर। रिपीट यूनिट आइडेंटिफाई करना है, ये लें, 2 कार्बन्स के बाद रिपीट यूनिट है। एडिशन पॉलीमर्स में every 2 कार्बन्स इन द चेन you have a repeat unit. Okay? Alright. हाँ, sometimes 3 भी होता है, yes you're right. Okay, let's try this one. You guys do it, go on. RCJ, go on, do it. N लगाएं ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, सो RCJ करना था। ऑल वी नीड टू रिमूव, ये रिपीट यूनिट है, कॉपी जॉइन, ये लें, N लिख दें, गुड, ना भी लिखें तो भी ठीक है, बट ये बॉन्ड बनानी ज़रूरी है साइड्स पे। कंटिन्यूएशन बॉन्ड्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। लास्ट स्टेप, लास्ट एग्जाम्पल, गो ऑन, डू इट। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा आप कैसे बनाना है। Go on, do it. किधर गया? Yes, go on. RCJ करें, शाबाश। Mubarsha, examiner will not ask you to make standard form. Examiner will say draw the addition polymer from this. That's all. आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर RCJ करना है। कंडेंसेशन पॉलीमर की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको वो देगा, एडिशन की नहीं देगा। ओके, सो RCJ बहुत आसान है, ये बनाया, इसको कॉपी किया और डन। ओके, ऑलराइट, अब अगर वो आपसे कहे कि फाइंड द रिपीट यूनिट या मोनोमर बनाओ तो कैसे करेंगे? आपने हर 2 कार्बन्स के बाद उसको ब्रेक कर देना। ये लें, ये एक रिपीट यूनिट है, ये एक रिपीट यूनिट है, ये रिपीट यूनिट है, ये रिपीट यूनिट है, ये रिपीट यूनिट है, ये रिपीट यूनिट है। रिपीट यूनिट को लें, ठीक है, और बस सेंटर में डबल बॉन्ड लगा दें, मोनोमर बन गया। ओके, रिमेंबर कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है ये एडिशन पॉलीमर है, इसमें H का कोई रोल नहीं है। नाउ लेट्स डू कंडेंसेशन पॉलीमर। इफ वी हैव कंडेंसेशन पॉलीमर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, विच वी मोस्ट लाइकली विल, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये 2 हैं, आई एम गोना कॉपी बोथ ऑफ देम। ओके, वी हैव अ कंडेंसेशन पॉलीमर हियर। व्हाट विल वी डू? RCJ। RCJ मतलब रिमूव, कॉपी, जॉइन। व्हाट आर वी गोइंग टू रिमूव हियर? H एंड OH। इस साइड से H रिमूव होता है, H रिमूव कर दें, इस साइड से OH रिमूव होता है, OH रिमूव कर दें। यू आर गोइंग टू गेट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नाउ whatever you have left, रिमूव कर दिया ना, कॉपी करो, ज्वाइन कर दो, ये लें, बन गया। ठीक है, सनान अभी देखते हैं, इसको देखते हैं। H और OH रिमूव करना है, मैं इस साइड से H रिमूव करूंगा, इस साइड से OH रिमूव करूंगा,
उल्टा भी कर सकता हूँ, उस साइड से OH रिमूव कर सकता हूँ, एक साइड से H रिमूव कर सकता हूँ. I just need to have the ingredients to make water. Water बन रहा है, good. So this one I'm going to copy it और join कर दिया RCJ. Okay. How will the examiner ask you? Examiner आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा. नंबर 1, एग्जामिनर आपको पॉलीमर बना के देगा. मैं भी करवाता हूँ आपको क्वेश्चन, ये लें एग्जाम का क्वेश्चन दे रहा हूँ. Examiner says name the type of polymer shown. पहला क्वेश्चन, name the type of polymers. Do you see any N C linkage? कोई चीज़ नज़र आ रही है ऐसी? नहीं है ना, वही चीज़ें रिपीट होनी है. This is addition polymers. Step 2, क्वेश्चन दूसरी तरह का क्या आता है. एग्जामिनर आपसे कहेगा draw the structure of monomer. और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, वो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द रिपीट यूनिट. कैसे करना है आपने, 2 कार्बन्स के बाद ये आपके पास एवरी 2 कार्बन्स यू हैव अ रिपीट यूनिट. रिपीट यूनिट को कॉपी किया, बीच में डबल बॉन्ड बना दी, मोनोमर बन गया. ओके, डन. ओके ओके, हियर इज अ क्वेश्चन. Examiner says okay, examiner says draw a polymer out of this. Okay, Dawn, hello Isa. Mehak, which ones? डबल बॉन्ड्स तो मोनोमर में होगी ना, मोनोमर में तो डबल बॉन्ड होती है. Abdullah, every time it repeats, that's where you have. For additional polymers, it's usually almost always 2 carbons, और उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड होगी. ठीक है, तो एडिशन में तो हमेशा 2 ही आएंगे. कंडेंसेशन में आपका 3, 4, 10 भी आ सकते हैं. You just have to break it through the middle of the bond. अभी मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ उसकी. Sanan, what do you mean by N? No, you don't have to write N. With the monomer, you don't have to write N. Okay, Naima. Okay, in condensation polymers, double bonds हैं नहीं है, उनका कोई रोल ही नहीं है. तो वो अगर पढ़ी हैं तो पढ़ी हैं. Okay, in condensation polymer, we are focusing on water. We need water. तो RCJ करेंगे. So go on, do it here. I'll give you 30 more seconds. अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो, यू शुड राइट H2O because that is a byproduct here. Yes. Sanan, you should continue watching. We are almost done with it. ये वाला पार्ट आप बाद में देख लेना, अभी हम आगे चल रहे हैं. Alright, so how do you draw this? RCJ, remove H and OH remove करना है आपने. आप यहाँ से OH remove कर दो, आपकी मर्जी. आप इधर से सिर्फ H remove कर दो तो भी आपकी मर्जी. And done. Now copy this part. Join, done. अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास. ये लेट्स सपोज एग्जामिनर हमें ये देता है और आपसे कहता है मोनोमर बना के दो. तो अब क्या करेंगे, इसके 2 केसेस आ सकते हैं. एक इस तरह का केस आ सकता है जिसके बीच में C डबल होगा. एक केस आएगा जिसके बीच में खाली O होगा. ठीक है, इस तरह करके होगा. और तीसरा केस आएगा जिसके बीच में आपके पास ये चीज होगी. अब इस तरह की चीज से ना वो क्या कहते हैं, घबराना नहीं है. द मोमेंट यू सी इट. सो हियर्स द थिंग, पहले आप 2 कार्बन्स के बाद काट रहे थे, अब आपने नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के बाद काट देना. ठीक है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डू.
ये ऑक्सीजन से काट दिया, ये यहाँ पे काट दिया, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन से काट दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ये ऑक्सीजन से काट दिया, ये ऑक्सीजन से काट दिया, ये ऑक्सीजन से काट दिया, इसको मैंने नाइट्रोजन से काट दिया, इसको भी नाइट्रोजन से काट दिया, ठीक है। गेट इट? क्या किया मैंने उसको हमेशा या तो ऑक्सीजन के बाद काटा है या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में काटा है। रिमेंबर दिस, कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हुए भी आपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव कराना है और उसको मोनोमर में कन्वर्ट करते हुए भी यही करना है, ठीक है। कंडेंसेशन का मोनोमर यूजुअली नहीं पूछते, ठीक है, बहुत रेयर केस में कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। अच्छा, अब जरा देखते हैं अब क्या बनेगा इसका। ये रिपीट यूनिट है, इसको पकड़ा, H और OH चाहिए आपको, ठीक है। इधर OH लगा दो, इधर H लगा दो, कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस कैन बी टफ, और ये अक्सर नहीं आएगा, मोस्ट लाइकली नहीं आएगा ये, ठीक है। दोबारा देखें, एक दफ़ा मैं एग्जामिनर सिलेबस से भी कंफर्म कर लूँ, उसने कहीं रिमूव ही ना कर दिया हो। 50700620। Fingers crossed. Identify the repeat unit or linkage in addition polymer and in condensation polymer. Deduce the structure of repeat unit of an addition polymer from a given alkene. Deduce the structure of a repeat unit of a condensation polymer from a given monomer. ठीक है, ये दोनों तो आप कर सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपसे उसने सिर्फ रिपीट यूनिट आइडेंटिफाई करने का बोला है, मोनोमर निकालने का नहीं बोला कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गो विद इट। सो हमारे पास हमें रिपीट यूनिट आइडेंटिफाई करने का आएगा, तो वो मैंने आपको ये लाइंस लगा के बता दिया। मोनोमर बनाने का नहीं आ रहा इसमें, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। अच्छा, अब अगली बात, आपने जब मोनोमर्स को देखना है या पॉलीमर्स को देखना है, देन हियर इज द थिंग, तीन बातें आपने ज़हन में रखनी है। नंबर वन, if your monomer has या polymer has this, if it has this, तो इसकी एक एग्जांपल है नाइलॉन और प्रोटीन, ठीक है। नाइलॉन हैज दिस लिंकेज, प्रोटीन हैज दिस लिंकेज। फॉर नाइलॉन वी कॉल इट पॉलीएमाइड, क्योंकि इट हैज मेनी एमाइड बॉन्ड्स, ये एमाइड है। एंड प्रोटीन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, बिकॉज अगर नेचुरल कॉम्पाउंड्स में है तो ये पेप्टाइड होती है। अच्छा, अगर आपके पास ये नज़र आ रही है, बार बार रिपीट होती है आपको, देन इसकी एग्जांपल है पेट। पुराने पेपर्स में देखोगे ना, उसने टेरालीन लिखा होगा, इस साल नहीं लिखेगा वो, इस साल पेट बोलेगा उसको, ठीक है। तो ये पॉलीएस्टर है, लेकिन आपने सिर्फ पेट का नाम याद रखना है, और पेट भी डिटेल में पूरा इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर, अगर ये आ रहा है तो पॉलीएस्टर है और उसकी एग्जांपल है पेट, ये आ रहा है तो पॉलीएमाइड है या पॉलीपेप्टाइड है और उसकी एग्जांपल्स हैं नाइलॉन एंड प्रोटीन। पेट क्या होता है? पेट इज़ बेसिकली दैट प्लास्टिक जिससे वो घरों में जो वाटर बॉटल होती है ना, ठीक है, वो उससे बनती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव। यूजुअली आपने उसकी सिंबल देखी होगी यार, मतलब ये बॉटल जूसेस की या जो कोक की बॉटल है वो पेट से बनी होती है, ठीक है। वो जो प्लास्टिक जिससे वो कोक की बॉटल बनी होती है वो पेट होता है, ठीक है। अच्छा, so what kind of question will come for PET? You need to be able to identify what PET is. You need to be able to say कि उसमें पॉलीएस्टर है वो और उसमें एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है। फैट्स नहीं है सिलेबस में, फैट्स इज नो लॉन्गर इन द सिलेबस, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। या सिर्फ प्रोटीन है और कोई ना कार्बोहाइड्रेट्स है ना कोई और है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव। सो एंड द सिलेबस इज रफली द सेम फॉर IGCSE एंड O levels। इसमें IGCSE में और O levels दोनों में सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना की है। अच्छा, एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर, आपको दो डिफरेंट तरह के बॉक्स्ड पॉलीमर दिए होंगे, ये है आपके पास, लेट्स सपोज एक ये है, एंड देयर इज अनदर वन
Okay. Examiner can ask you which one is protein and which one is PET. Oh, sorry. Which one's protein, which one's nylon. So how will we answer this? ठीक है? We will simply say that if you have carbon, nitrogen, nitrogen, carbon, that's what you have to look for. Switch कर रहा है कि नहीं? Okay? If it is switching, carbon, nitrogen, nitrogen, carbon, उल्टा हो गया ना? तो this is nylon. और अगर उल्टा नहीं हुआ है, carbon, nitrogen, carbon, nitrogen, then this is protein. Okay, that's it. So CNNC, that is nylon. NCNC, that is protein. Thank you, Ratib. Okay. What other question? Hydrolysis is in the syllabus. Hydrolysis हमने किया तो है. Hydrolysis जो आपको पॉलीमर का हाइड्रोलिसिस है, कंडेंसेशन का, वो नहीं है सिलेबस में. रिमेंबर दिस. एल्कीन का हाइड्रोलिसिस सिलेबस में है. ठीक है, एल्कीन का हाइड्रोलिसिस. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट ऑर्गेनिक? गो ऑन, दिस इज द टाइम. अगर कोई क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सएप कर दें. लेट मी सी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन दिया है. Okay, I don't have any questions so far for this. Okay, hydrolysis of alkenes क्या होता है? बहुत सिंपल है. You have an alkene, इसमें water ऐड करना है, alcohol बन जाएगा. That's it. Conditions: H3PO4 catalyst, phosphoric acid, 60 atmospheres pressure, 300 degrees Celsius. Now for O levels people, just remember you have high temperature for the requirement. For IGCSE people, you need to remember all of this. Okay, 60 atmospheres, 300 degrees Celsius pressure. Okay, that's what you have to remember, and that is addition of this. And IGCSE people, if you don't want to remember H3PO4, that's fine. You can just say acid catalyst. So these three things required for O levels and IGCSE. Okay, for hydrolysis of alkene, hydrolysis of organic compounds में सिर्फ यही है आपके पास. फर्मेंटेशन पे क्वेश्चन है. फर्मेंटेशन में जस्ट रिमेंबर दैट फर्मेंटेशन इज, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? यू टेक ग्लूकोज, ठीक है, यू ब्रेक इट डाउन विदाउट ऑक्सीजन, सो इट हैज एनारोबिक. टेम्परेचर इज 25 to 35, सो आई यूजली जस्ट राइट 25, बट आपकी मर्जी है, ठीक है. और इस पर क्वेश्चन क्या है? यू नीड टू मेक श्योर दैट दिस विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल, C2H5OH. ओके, दैट्स व्हाट यू गेट. ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखें, C6H12O6. ओके, ईथीन टू एथेनॉल, ये अभी तो किया है, ये वाला, ये ईथीन टू एथेनॉल है. अच्छा जी. क्रैकिंग में जस्ट रिमेंबर दैट you have to balance both the sides. वो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि I'll give you an example of a question. You have C17H36. Examiner says C2H4, 2C2H4 plus this. Complete the equation. So क्या करना है? बहुत सिंपल है. आपको पता है कि यहाँ पे 2 times 2 4 कार्बन्स नहीं है और यहाँ पे टोटल 17 है, तो इसका मतलब C13 हो जाएगा. और हाइड्रोजन 8 माइनस कर लेंगे, C13H28 बन गया. दैट्स इट. You just have to break it down into the smaller molecules that they want, and that's it. वो आपसे पूछ सकता है कि क्यों ऐसा करते हैं. We need it for making the demand of smaller hydrocarbons. Why? Because they are used in fuel. They are used to make other compounds. We need hydrogen from it. So these are the requirements. Why we do cracking. Larger molecules का हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा जी.
What is extra added for plastics? Just know PET, PET, capital, all of them. That is going to be the main polyester in our syllabus. That's it. Fats are no longer there. Carbohydrates are no longer there. Alkane reaction with chlorine. बहुत सिंपल है, यही एल्केन ले लेते हैं, C17H36, इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराता हूँ. What will happen? One chlorine will displace hydrogen and that's it. वो switch हो जाएंगे. ठीक है. So you're going to get C17H35Cl plus HCl. अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि if the reaction is completed many times, how many HCl molecules can be made? बहुत सिंपल सी बात है. Every time you remove a hydrogen, you make a chlorine, or you make an HCl. So I have 36 hydrogen. I will be able to make 36 HCl, and this is substitution. Okay. Asad's question is, how do we do the question in which a polymer is given and we have to write down the monomer? अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले. I will put the timestamps and obviously if you guys can help me out with that, that will be great. और हम उससे वो बना लेंगे. अच्छा जी, इसमें कैटलिस्ट वगैरह आपसे पूछता है वो. ठीक है. इन दिस रिएक्शन यू जस्ट नीड अल्ट्रावायलेट लाइट. ठीक है. सनलाइट भी लिख सकते हो आप. इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है. IGCSE people need to know this. O levels people कोई मसला नहीं है. Just know that there is a catalyst. और उसके अलावा ये है, यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट बता दिया आपको. एक और है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं. So that is nickel catalyst, high temperature. Again, temperature requirement हमें नहीं पूछेगा वो. You just need to do this. All right. और कोई question organic का? We are almost done with organic. जल्दी बता दें. All right. So there's a question. C4H8 का branched isomer बनाएं. Okay. This we know. Okay, so let's end it organic वाला part on this. Go on. C4H8 के 2 branched isomers बनाएं. शाबाश. I think everybody can do it. C4H8 branched isomers. Glucose in chromatography करवा देता हूँ, don't worry. Okay guys, let's do it. The C4H8, we need branched isomer, no problem. First of all, make 4 carbon chain and then make 3 carbon chain. Put the 4th one in the middle. Okay, now we have alkene, right? So 1 और यहाँ भी ये बन गया. अच्छा, एक और भी बना सकते हैं वैसे. 1 2 3 4. ये भी C4H8 है and this is cyclic. ठीक है, तो ये एक यूनिक केस है इसके केस में. And we'll just fill it all up. Is it C4H8? Yes, it is. Okay, so 3 isomers that we have made. All right. L-shaped branches. Yeah, this is an L-shaped branch. ये उल्टा L है. ठीक है. All right, so now we are done with organic. We will return in 5 minutes and we will do bonds calculation and then electrolysis. ठीक है? All right, guys, let's start again. We are going to do bond energy calculations now. This is recently added to O-level syllabus, but it has been there for IGCSE for quite a while.
bond energy calculations. So not difficult, easy topic. ठीक है, let's see how to do it. Delta H पता है आपको क्या होता है? Delta H is the energy of the products minus energy of the reactants. ठीक है? That is one way of looking at it. Sorry. Okay. Just a minute, I'll check WhatsApp. आपके मैसेज अभी देखता हूँ. So that is one way of looking at it. और हम जब bond energy diagram करते रहे थे उसमें we did this. We know कि अगर products नीचे होंगे तो energy will fall, which means this is exothermic, because products minus reactant and reactant ज़्यादा value है, so it will be negative. Similarly, अगर हमारे पास this is what we have, then this is higher, this is lower, product minus reactant करेंगे, we'll get a positive value. Okay, and that's what we will get. Okay, yeah. Okay. Yes, Arib, it will be. Alright, so this is one way of looking at bond energy and trying to figure out whether we have exothermic or endothermic. Alright, now let's see the second method. And the second method is if I already have an equation. Okay, so if I have an equation, I'll start with a very simple case. I have hydrogen reacting with oxygen making water molecules. Okay, so I'm burning hydrogen and I want to get water molecule. Now bond energy values, ये एक लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. It has all of the bond energy values जो आप लोग देखोगे, ठीक है? वो आपको values देगा. You don't need to memorize any of them. Alright, अच्छा ये लिंक पोस्ट नहीं कर रहा है. Anyways छोड़ो. So अब आपको उसने टेबल दिया होगा. उसने आपको बोला होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वैल्यू और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की वैल्यू. So let me just get the values from hydrogen bond value is 432 kilojoules per mole. Hydrogen oxygen bond is 467 and oxygen double bond is 495. So step 1, whenever you're doing these questions, आपने देखना है कि कौन सी bonds आपके पास हैं. तो यहाँ पर you have 2 hydrogen molecule, you have 1 oxygen का molecule and you have 2 water का molecule. So what have I done? I have drawn the Lewis structures for these और Lewis structures में हमारे पास इस तरह से bonds नज़र आती हैं. अब आपने क्या करना है? I will advise कि आप इसको 3 steps में करो. IGCSE के एग्जाम में एग्जामिनर खुद वो 3 steps आपको बना के देता है. O levels के एग्जाम में हो सकता है वो steps बना के दे, हो सकता है वो ना बना के दे. But we know what to do. Step 1, आपने देखना है energy of bonds broken. And that will be this side, the reactant side. These are the bonds that need to be broken. तो आपने सिर्फ bonds को calculate करना है. मेरे पास hydrogen bond है multiply by 2. सही है? So I'll do 2 hydrogen bonds plus मेरे पास एक oxygen double bond है. I'm going to copy that part and that's what I have. Oxygen double bond. That's it. These are the bonds broken. मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूँ. 2 hydrogen bond 2 times 432 प्लस ऑक्सीजन 495. कैलकुलेट करते हैं. 2 times 432 प्लस 495 1359 kilojoules per mole. Okay, good. So these are the energies of bonds that you have to break. ठीक है? So क्या करना है? आपने सबसे पहले अपने मॉलिक्यूल्स को इस फॉर्म में बनाना है. मोस्ट लाइकली आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि एग्जामिनर आपको ये बॉन्ड्स बना के देगा, आपको ये लिख के देगा, ये नहीं देगा. ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि IGCSE में वो ऐसे ही करता है. लेकिन वी नेवर नो, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो इस साल कैसे देता है. आपने ये स्ट्रक्चर्स बना लिए. आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ 9 मॉलिक्यूल्स जिसकी आपको ये स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए. ठीक है, 9 मॉलिक्यूल्स हैं.
अच्छा जी, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, रिएक्टेंट्स की जितनी एनर्जीज हैं वो लिख लेनी है। कैसे? मुझे पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हैं, हर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 टाइम्स दैट। हर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, मैंने ये बना दिया। ये वैल्यूज़ मुझे वो एग्जामिनर देगा, मुझे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई पुट देम इन, आई गेट द एनर्जी। दिस इज द एनर्जी दैट यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट यूज़ करो ना तो ये सारा नहीं करना पड़ता, लेकिन विदाउट कैटलिस्ट दिस इज व्हाट यू हैव। स्टेप 2, एनर्जी ऑफ बॉन्ड मेड, बॉन्ड्स मेड। अब ज़रा गौर कीजिएगा इस पर। यू हैव वन वाटर मॉलिक्यूल, हाउ मेनी बॉन्ड्स डू यू हैव इन दैट? आपके पास हर वाटर मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड होती है। कितनी? एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 है ना, एक ये है और एक ये है। सो 2 ऐसी बॉन्ड्स हैं आपके पास, और आपके पास हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है 2 × 2 4 OH बॉन्ड्स है मेरे पास। सो दैट्स व्हाट आई हैव, 4 OH बॉन्ड्स। OH की वैल्यू मुझे 467 पता है, 4 × 467 करूँगा, बन गई 4 × 467 1868। ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स मेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, यू नो दैट डेल्टा H इज एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस एनर्जी ऑफ बॉन्ड मेड। क्यों? आपको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग पॉजिटिव है, बॉन्ड मेकिंग नेगेटिव है। सो हियर वी गो, वैल्यूज लिख दें 1359, क्या हो गया, -1868, देख लेंगे। You have -509. This is my overall enthalpy of this reaction. ठीक है, so हो गया, done। तो अगर कोई गलती नहीं की तो बस this is it. Okay. Alright, I'm going to give you another one. H2 plus I2, बल्कि let me make it easier for you. HH plus I makes HI times 2. Okay, the bond energies are HH bond energy is 432, iodine bond energy is 149, hydrogen iodine bond energy is 295. Go on, calculate the delta H of this reaction. This is for both O levels and IGCSE. O levels में इस साल ऐड हुआ है, IGCSE में पहले से है। ओके, okay, so here's what we should be doing. सबसे पहले आपने देखा बॉन्ड्स ऑफ एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटी है, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड टूटी है, these are the two bonds that are broken. So 432 plus 149, that is 581 joules of energy that is
absorbed to break the bonds. Okay. All right. Okay. Next we have hydrogen iodine bond, or there are two of them. So all I need is 2 times 295. So that is going to be 590. अब energy of bonds broken minus made. सही है? तो 590 minus 581 plus 9 kilojoules per mole. This is my final answer. Okay, there you go. Let's do one slightly more complicated example. Okay, करते हैं. Okay. थोड़ा सा अच्छा चलो कर लेते हैं. आई एम टेकिंग हाइड्रोजन प्लस सल्फर की कोई बॉन्ड्स नहीं है, प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एंड आई एम गोइंग टू मेक H2SO4. Okay, I'm going to give you the values. Hydrogen bond energy 432, sulfur की 0 है, oxygen double bond is where is it? Yeah, 495. Sulfur oxygen single bond, OH bond, and sulfur oxygen double bond. This is okay. Go on. You have all the values. Try to calculate the total energy absorbed and total energy released, and then calculate the delta H. What happened to my camera? Something's wrong with it. I'm not sure what happened here. Yeah, better. No. You're not required to memorize any of these. Okay? ये सारी वैल्यूज आपको देगा. अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, तो अब आपने करना क्या है? यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स ब्रोकन. अब ज़रा देखो बॉन्ड्स ब्रोकन कौन कौन सी हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगी और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेंगी, तो ये बन जाएगी 432 495 टाइम्स 2. तो टोटल हमारे पास आ गया 432 प्लस 495 टाइम्स 2 1422. दिस इज द एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन. ठीक है, ये ब्रोकन है, ये पॉजिटिव होता है. ठीक है, अब देखते हैं बॉन्ड्स मेड. एक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, और वो कितनी है? एक ये है और एक ये है, तो देयर इज 2 ऑफ देम. तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड. ओके, प्लस सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड 2 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, प्लस 2 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स हैं. सो 2 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स. अब इसकी वैल्यूज लिख देंगे.
2 times OH, 2 times OH is 467 plus 2 times SO 327 plus 2 times SOO 357. Okay, sorry, double bonded O, not okay. So I'm getting 2302. Okay, so broken minus made. This is the energy of bonds made. This is negative. Broken minus made. So 1422 minus 2302. ये energy क्या बना? Minus 880, and that's it. Kilojoules per mole. And that is what you have. How is that one plus 9? ये क्वेश्चन सबको समझ आया? How is this minus 880? अब ज़रा देखते हैं. Broken minus made ही होता है भाई. So what happened here? Oh, my bad. Sorry guys. This is broken minus made. Thank you for pointing it out. Broken ये है, made 590 है, minus 9 overall value आएगी. ठीक है? Broken minus made. No, Zephyr, don't give up. Please don't give up. हो जाएगा. Yes, you're absolutely right, Naki. Adil, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. This should be minus 9. Okay, there you go. So this is bond energy calculations. तो हमारे सिलेबस में दो नई चीज़ें ऐड हुई थी, कूलिंग कर्व एंड बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन. कूलिंग कर्व हमने देख लिया. इट वाज द रिवर्स ऑफ दिस. ये कूलिंग कर्व है. यहाँ पे गैस है, लिक्विड, सॉलिड. Here it is both gas and liquid, equilibrium है, liquid and solid, equilibrium है. Both of them are here. Okay, this is cooling curve. यहाँ whenever the temperature is constant, that is state change. Wherever the line is not constant, that is temperature change. Okay. साफ़ी बिल्कुल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है. अगर आपके पास प्रोडक्ट की ओवरऑल एनर्जी वैल्यू है और रिएक्टेंट की ओवरऑल एनर्जी वैल्यू है फ्रॉम द ग्राफ, वो हमारे पास नहीं है यहाँ पे. हमारे पास यहाँ था बॉन्ड्स को. तो बॉन्ड्स को जब आप देखते हो तो ब्रोकन माइनस मेड. तो दो केसेस हैं. ठीक है, ब्रोकन माइनस मेड या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. बोथ ऑफ देम विल गिव यू एंथैल्पी डेल्टा एच. ठीक है, ओके. नकी, व्हाट डू यू मीन? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं विच पार्ट? हेलो कतर पीपल, मैं आ रहा हूँ 18 को इंशाल्लाह कतर आ रहा हूँ. Okay. Okay. So done. Everybody, good to go. Why did I not do 3202 minus 42? Again, broken minus made. Okay. So that's what you have. Okay. Broken minus made. That's what we need. Alright, done. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंसिंग इक्वेशन. बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसके ऊपर मेरी एक 5 मिनट की वीडियो है. बैलेंसिंग इक्वेशन में अभी आपको उसका लिंक शेयर करता हूँ. ये हमने किया था एक कंबशन के हवाले से. दिस इज कंबशन एंड बैलेंसिंग, एंड देयर वाज अनदर वन विच वाज अबाउट बैलेंसिंग इक्वेशन. उसमें it's a 16 minutes video and I've practiced many equations in there. So do that. Okay, do that. Alright. Okay, so next question is थोड़ी सी confusion ये आ रही है कि product minus reactant कब करना है और broken minus made कब करना है. देखो बड़ी सिंपल सी बात है. अगर आपके पास ग्राफ है तो product minus reactant for enthalpy. Okay, और अगर आपके पास bond energy है तो broken minus made. That's it. Both of them will give you the same answer. Okay. Assalamu alaikum Heather. I'm good. अरीब, हमने ऑर्गेनिक की है, हमने बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशंस किए हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर किए हैं. ठीक है, ऑलराइट, गुड एवरीबॉडी. बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशंस हो गई हैं. ठीक है, साफी ऐसे नहीं कहते. वी ऑल लव पाकिस्तान. यू विल सैक्रिफाइस योर ओन लाइफ फॉर पाकिस्तान. Okay.
Alright, graph वाला समझा दें. Graph वाला देखो, if you have a graph which is like this, which starts higher and ends lower, that shows exothermic. Okay, because your product which is here and the reactant which is higher, ये product है, ये reactant है, you subtract them, overall value is decreased, that is exo. If you have a graph which is like this, that shows you started low, you ended high. Okay, so this has increased, this is positive, this is endothermic. Okay, energy of bond breaking and bond making कोई फर्क नहीं होता इसमें. Sorry Coco. Yeah, energy of bond making, bond breaking में कोई फर्क नहीं होता. It's just that we have different bonds that we have to identify. Assalamu alaikum Mustafa. Alright. Any questions on this topic guys? जल्दी भेज दें अगर इस topic पे कोई question है. Okay, so here's a question. Thank you for sharing. Question is, you have sulfur plus this and makes this. The bond energies are FF is 160 and the delta H is energy given out is 780. So that means delta H is minus 780 kilojoules per mole. Okay, the questions that use the information to find the value of one SF bond. ठीक है, बहुत easy है. You just need to know broken minus made. What are the energies of bond broken? ये bonds टूटी हैं. इसमें तो bond है ही नहीं ना हमारे syllabus में. तो 2 times 160. ये bonds टूटी हैं. तो 2FF टूटा है. और the bonds made they are 4SF. ठीक है, 4SF. यानी कि 4 times X. Now broken minus made. This is broken minus made is equal to minus 780. We'll just solve an equation. So 320 plus 780 is equal to 4x. ठीक है, and this is I guess क्या 1100. 1100 is equal to 4x divided by 4 कर लेंगे. That is 275. Yep, 275 kilojoules per mole, and that is the delta the bond of one of these bonds. Okay, what other question do I have? एक और question था, ये नहीं. भाई calls नहीं करें इस वक्त. Oh, question is, how do we identify bonds broken? The bonds of the reactants are broken. That's what you know. ठीक है. Ionic compounds की bond energy calculation हमारे syllabus में नहीं है. It's only covalent bonds. Okay, only covalent in syllabus. ठीक है. Okay, what else? I have done 10 years past paper. Good, very good. Now what should I do? Enjoy, relax भाई. कर लिए हैं 10 साल के papers, और क्या चाहिए? Just revise your notes. अगर कोई questions नहीं आए उनको review करो और बस अच्छी नींद पूरी करो, और क्या. Okay, this is a question on delta rate of reaction. ये मैं बाद में कराता हूँ. ठीक है, अभी let's just focus on bond energy. Anybody with bond energy calculations? Okay, moles with concentration. ठीक है, ये कराता हूँ. Don't worry. Equilibrium shifting and reversible. Okay, let me write that as well. Okay. $75 above नहीं आ रहे. What do you mean by 75 above नहीं आ रहे? किस पेपर की बात कर रहे हो आप? अच्छा, question is that explain why aluminum is extracted by electrolysis and not by reduction of carbon.
So we know that carbon is less reactive than aluminum, and that is why it cannot reduce aluminum oxide. Okay. Okay, bond energy calculation. Again, this is जो आपकी ionic bonds हैं, they are not in our syllabus for bond energy calculation. Only covalent bonds are. But उसके अंदर if you have any ionic compounds, you can still do product minus reactant in that. ठीक है? But not bond energy calculations. All right. Okay, what else? Okay, this is a short question that what kind of oxides we have. So ये मैं आपको बता देता हूँ. So the oxides that we have, they can be of two main kinds. There are oxides that are metal oxides, and there are non-metal oxides. Now, metal oxides can either be basic or amphoteric, and non-metal oxides can either be neutral or acidic. So there are three that you have to remember. In amphoteric oxides, remember that zinc, aluminum and chromium oxides are amphoteric, and any other metal oxide, take it to be neutral. Basic. My bad. Take any other metal oxide to be basic. Acha. For IGCSE people, you also need to know that lead amphoteric hota hai. Lead oxide is amphoteric. But O levels people, you don't need to know this. For non-metals, you know that non-metal oxides, carbon monoxide, water and nitrogen monoxide are all neutral. Any other non-metal oxide will take it to be acidic. Now, that does not mean that there are no more acidic or neutral or amphoteric oxides. Aisa nahi hai. There are amphoteric oxides that are for metals, but not the ones that we need to remember. We just need to remember these. Okay. Afan has sent a question. Thank you, Afan. Let's solve it. So, Afan's question, here you go. We have nitrogen triple bond plus 3 FF bonds making 2 FNF bonds. Okay. The bond energies are nitrogen triple bond is 945, FF bond is 160, and NF bond is 300. Go on, guys. Step 1, bonds or bonds broken. Step 2, bonds made. Final delta H, broken minus made. Go on, do it. Take 2 minutes, do it. Okay, let's do it. Energy of bonds broken. I have nitrogen bond broken, so that's 945. I have 3 fluorine bonds broken, so that is 3 times 160. So this comes out to be 945 plus 480, 1425. Acha. Energy of bonds made, I have 2 times 3 FN bonds. ये मैंने कैसे किया? मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले हर मॉलिक्यूल में FN बॉन्ड है 3, तो मैंने उसको 2 टाइम्स 3 कर दिया. आप फाइनल 6 भी कर सकते हो ऑब्वियसली. तो 6 टाइम्स 300 दैट्स 1800. ब्रोकन माइनस मेड 1425 माइनस 1800 375 या माइनस 375.
So minus 375 kilojoules per mole. That's your answer is. यार डिस्टिंक्शन इज ओवर रेटेड, छोड़ दो, ठीक है। मेरे माशाल्लाह से मेरे 4 स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन आई हैं और उनके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इक्वली गुड थे और ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी। ऑफ कोर्स ऑल 4 ऑफ देम एब्सोल्युटली डिजर्व्ड इट, बहुत मेहनत की थी, बट दैट डज नॉट मीन कि किसी और ने मेहनत नहीं की थी। डिस्टिंक्शन किस्मत की बात है यार, आ गई तो गुड, ना आई कोई गम नहीं, ओके। Alright, so I hope everybody is comfortable with bond energy calculations. Okay, next question is electrolysis. Let's do it, guys. I have no idea electrolysis पे confusion क्यों है अभी भी बच्चों को, but होती है, कोई मसला नहीं, अभी इंशाल्लाह अब नहीं होगी। Sorry, yeah. Alright. How many marks we aim for A star? Threshold देख लो, उसमें लिखा होता है। Alright, so electrolysis कैसे करते हैं? Electrolysis question, again, I'm not going to teach you the concept of electrolysis right now. I'm just going to teach you how to attempt the exam. ठीक है? So आंखें खोल के, कान खोल के गौर से सुनिएगा. Pay attention, everybody. Alright, so in electrolysis we have this basic setup. We have electrodes, positive, negative. ठीक है? The side that is bigger one is positive, smaller one is negative, right? So that means this whole thing is positive, this whole thing is negative. Now there is going to be an electrolyte, which means that this thing must conduct electricity. If this is a thing that does not conduct electricity, then of course this is not going to do it. So अब आपको मैं 4 options दे रहा हूँ, you have to tell me which one is the best electrolyte. Okay, so I'm going to give you 4 electrolytes. Best electrolyte pick करें, ठीक है। Go on, guys. Pick it. Poll is open. Okay, so we have an answer here, and unfortunately that's the wrong answer. So here's the thing, we had 4 choices here: molten sodium chloride, molten aluminum oxide, pure water and ethanol. Which one is the best electrolyte depends on which one obviously has the most ions.
So aluminum oxide will have the most number of ions. क्यों? अगर आप उसके formula को देखो तो Al2O3 है. So Al2O3 means that you are going to have 5 ions. But NaCl में आपके पास 2 ions हैं. तो अगर एक मोल की बात करेंगे तो this is 5 moles of ions and this is 2 moles of ions. So obviously this is going to conduct electricity much better. Okay. Second, ethanol does not conduct electricity. And ये बात बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा. Pure water is a bad conductor. It cannot conduct electricity. It does not have free ions. So pure water बिजली नहीं conduct कर सकता. Okay? Alright. Alright. So electrolyte बन गया हमारे पास. Cathode anode हो गए. अब cathode anode क्या होते हैं? The positive one, एग्जाम में आपने cathode नहीं लिखना, anode नहीं लिखना, आपने positive या negative लिखना है. Remember this. एग्जाम में we are just going to write positive or negative. We are not going to write cathode or anode. So positive is where anions come, that's why it's called anode. Negative is where cations come, that's why it's called cathode. Now these can be reactive or inert. ठीक है? आप inert को याद कर लो, reactive automatically बाकी सब हैं. There are 2 inert ones in our cylinder, platinum and carbon. Graphite is inert and बाकी सब, platinum is also inert. Okay. Now that we know this, let's get to it. 2 rules. Step 1. First rule every single time. First rule. Reactive anode dissolves to make ions. So अगर आपके पास reactive anode है, it will make ions, it will dissolve. There you go. Done. Second rule. Less reactive ion discharges except concentrated halide. 2 rules for all electrolysis reactions. You can't go wrong with it. ठीक है? So दोबारा सुन लीजिए. We have 2 rules and these rules govern the electrolysis, all questions that we are going to have in our syllabus. Okay? So step 1, reactive anode ionizes. Okay, so I'm going to give you a setup. I want you to tell me what happens at the anode. सिर्फ anode को भी focus कर रहे हैं हम. I have this setup. First of all, tell me which one is the anode. Go on, tell me which one is the anode. So again, remember, anode is where anion comes. Cathode is